मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कसिंग 49th जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स। From 1st to 48th GST Council meeting minutes we have already discussed, and all the videos have been uploaded on the YouTube also. And why we read and study GST Council meeting minutes? Because our focus is GST litigation. And the whole GST law has been made, and any changes in the law and the origin of law was GST Council meeting. The federal structure, both central government and state government sits, and the meeting takes place, and in that meeting they recommend the changes in law, issuance of notification, issuance of circulars, etc. And if you read the law, it says that on the recommendation of the GST Council. Now that recommendation are recorded in the minutes. Therefore, the reading and studying of minutes is very important if you want to get into GST litigation. We also do GST compliance, but our focus is GST litigation only. So this 49th GST Council meeting, if you read this, let me share the screen. This is 49th GST Council meeting minutes, and this whole minutes can be purchased from our website taxbykk.com. And if you see that we have typed it and we have marked somewhere red also, the most important parts which we will be reading here. So let us start this 49th GST Council meeting minutes. It was held on 18th February 2023 at New Delhi. And the chairperson was Nirmala Sitharaman at Vigyan Bhavan, the Union Finance Minister. Agenda item is written here. And when they read the agenda item, the first agenda item is always the last meeting minutes. So the confirmation of the minutes of 48th meeting of GST Council held on 17th February 2022 and errata. Because if you see the original, they have written and errata. They wanted to write something, but they have not written. Therefore, same as original we have written. And in this 48th meeting, when they discuss some correction in the minutes, and that correction is also recorded. Here, these are the corrections which have been recorded. So what we are doing, I have read this whole minutes once and marked it red. तो जो हम लोग को already discuss करना है, the thing which we wanted to discuss, I have already marked that as red. If you see here, this is the place we have already marked that red. Now, this report of Group of Ministers on Constitution of GST Tax Tribunal, यानी कि GST Tribunal, the setting of GST Tribunal. Now, before I start reading, let me ask you something. What is the most important criteria for setting up GST Tribunal? बताइए, GST Tribunal को सेटअप करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या करना होगा? Selection of members. Yes, selection of members, यानी कि judges. If you see the old law of GST Tribunal, then they said that one judicial member and two technical member, and one from state, another from center. Now, who are judicial member? Judicial member कौन होते हैं? Those who are conversant with interpretation of law. इसका मतलब he should be a judge. If there is a question of law, then who should decide this question of law? If there is an interpretation issue, who can better decide, judicial member or technical member? Judicial member. Obviously, judicial member. Now, who are technical member? Technical member are administrative people. Yeah, similarly, these are the IS officers. He can be a additional commissioner having a 25 years of experience, and in VAT experience, excise experience. So these are the technical members. They are not well conversant with law. They
they cannot interpret the law. For example, suppose in the any act, section 129 says notwithstanding anything contained in this act. 130 also says notwithstanding anything contained in this act. It means that both 129 is overriding the whole act, 130 is also overriding the whole act. Now, which section will prevail, 129 or 130? Who can decide? Judicial member, yani ki judge who is well conversant with law, or technical member? Judge. This is question. Judicial member. Judicial. Then judicial member can only decide. Yes. Because he knows better how to interpret the law. Suppose in section 73 and section 74, it is written the proper officer. And what is the meaning of the used before proper officer? Can technical member decide? Only judicial member can decide. And the proper officer means here, and various courts have already interpreted it, the officer means only that proper officer who has initiated the inquiry. He can only issue the show cause notice, he can only adjudicate, he will only sign the order. But if show cause notice is issued by Mr. A and order is signed by Mr. B, then this is wrong and this order will be quashed. Until unless law provides otherwise, like audit or intelligence can issue the show cause notice, but adjudication will be done by some other department. This is allowed in law, but not otherwise. So these are the question of law which can only be decided by judicial member. Now, if in any bench there is one judicial member and two technical member, then on the question of law, whether the judgment will be correct judgment or a wrong judgment. If in any bench there is one judicial member and two technical member, then this judgment will be wrong or correct judgment on question of law. Might be wrong. Might be But wrong. only one judicial member. Because there is only one judicial member. But on question of fact, what is question of fact? Seeing the evidences. Suppose 26 AS and your books and GSTR1, these all should match, yes or no? Whether they are matching or not, these are question of fact. You have to produce 26 AS, you have to produce your books, you have to produce your GSTR1, you have to produce your invoices. The question of fact is decided on the based on evidences. And these evidences are better checked by these technical members only because they are in administrative service and they are used to it. Now, originally the law was made like this: one judicial member and two technical member. Then Madras Tax Bar Association, then again in Supreme Court, they said that this tribunal cannot be set up. There should be balanced members in the benches. Therefore, in this 49th GST Council meeting, and before that, they have set up a group of ministers. They made law according to the law prescribed by Madras High Court and Supreme Court. And they said that in any bench, there will be two judicial member and two technical member. Correct? Now, if there are two judicial member and two technical member, suppose the issue involve only question of fact, then who can decide? Technical member. Technical member can be decided. Therefore, this case will go to one technical member or two technical member depending upon the amount involved. But if the question involved question of law, then judicial members. Judicial member, then the bench can comprise of one judicial member, one technical member, or two judicial member, one technical member, or two judicial member, two technical member. Correct? Yeah. So that the on question of law, judicial member are adequately represented.
and these two judicial member, if not in majority, then it should be equal. Correct? Now, who shall appoint judicial member and technical members? जैसे हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? इनके अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ जजेस को रिकमेंड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट शायद अपॉइंट करती है। मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन दिस माइट बी द केस। और शायद अभी रिज्जू जी जो थे उन्होंने कहा कॉलेजियम बनना चाहिए, कॉलेजियम शुड रिकमेंड वगैरह वगैरह, कुछ कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी क्योंकि जजेस का अपॉइंटमेंट में लेट हो रहा है। खैर, इन एनी केस, अब यहां भी कौन अपॉइंट करेगा? आप समझिए, आर्टिकल 246A क्या कहता है? सीजीएसटी एक्ट बनाने का पावर किसके पास है? आईजीएसटी एक्ट बनाने का पावर किसके पास है? सेस एक्ट बनाने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एसजीएसटी एक्ट बनाने का पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट। क्या सीजीएसटी एक्ट में जो लिखा हुआ है और वही एसजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है, ये जरूरी है? यस और नो? नो। हो सकता है महाराष्ट्र वाला कहे कि हम अलग से सर्कुलर निकालेंगे, या हम अलग से लॉ बनाएंगे, या हम अलग से ट्रिब्यूनल सेटअप करेंगे, हमको ये ट्रिब्यूनल जो आप सेटअप कर रहे हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। इज इट पॉसिबल? Yes, possible, sir. Yeah, possible. It is possible because SGST Act, Article 246 Constitution has given power to make SGST Act by respective state governments. It is possible. It is possible. Though no states is going against the recommendation of the GST Council, and mind you, GST Council recommendation is only recommendation. It is directory in nature, not mandatory as far as acts are concerned. But as far as notifications are concerned, they are mandatory. They are mandatory. Now come again here. Now this state government says that, like suppose the Rajasthan government or UP government says that we want to set up state tribunals, and if there is a now if the UP government wants to set up state tribunals, and after state tribunals, two layers. Suppose one state tribunal, and suppose let me call it regional bench, and another state tribunal maybe called state bench. Now, how the case will flow? Order will be passed, and it will go to appellate authority. This is your first level. If you loses the case from appellate authority, it will go to regional bench, and if you lose, this will be second level, and if you loses at regional bench, then you will go to state bench. This will be your third level. If you loses here, you will go to High Court. This will be your fourth level. If you loses here, then you will go to Supreme Court. This is fifth. Now, if the state governments are allowed to set up their own state tribunals, seeing that the Article 393 allows us to set up the state tribunals, and they have set up VAT tribunals in VAT area, they have set up the tribunals also. With the no interference with the central government or GST Council, that was not there. Now, there will be 5 level of justice. Now, justice will be delayed. And in the original act also, the state government there was never an attempt to set up state tribunals. There was only one tribunal, that is National Tribunal. And this National Tribunal, under this National Tribunal, state benches would be there.
Now, how this hierarchy works now? First appellate authority, this is your first level. Then you go to state bench. If you loses the case from state bench, then you directly go to high court. In case of national bench, only place of supply issues or interstate issues goes to state bench, and if you loses the case, then you go to Supreme Court. And from state bench to high court to Supreme Court. Now, first level, second level, third level, fourth level. And if it is a case of place of supply, then first level, second level, and third level. So obviously लेवल जितना कम होगा उतना जल्दी जस्टिस मिलेगा. ठीक बात है. अब आप एक बात बताइए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या करें. टेक्निकल मेंबर एक सेंटर का होगा, दूसरा स्टेट का होगा. स्टेट बेंच में सर अपने पेन का कलर कुछ चेंज कर दीजिए ना, डार्क कर दीजिए ना. डार्क कर ले. टेक्निकल मेंबर, ठीक है. अब ये ओके सर. स्टेट. Yes, sir. Okay. स्टेट बेंच में जो टेक्निकल मेंबर होंगे, दो जुडिशियल मेंबर जो हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, एंड दो टेक्निकल मेंबर होंगे. ये दो टेक्निकल मेंबर कौन से होंगे, सेंटर वाले या स्टेट वाले, या एक एक रिप्रेजेंटेटिव होगा? कहिए. एक सेंटर का होगा, एक स्टेट का होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि जब टैक्सेबल वैल्यू पे टैक्स लगता है तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगता है ना. तो इश्यू जब जाएगा स्टेट बेंच में तो ऑब्वियसली सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का मामला डिसाइड होगा. इसीलिए एक सेंटर का, एक स्टेट का. करेक्ट है? हेलो. यस सर. यस सर. नाउ who will appoint this center technical member, who will appoint this state technical member? And suppose there is a bench of only one, this is not divisional bench, एक ही जज को बैठना है और वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो कौन बैठेगा? सेंटर का टेक्निकल मेंबर बैठेगा, स्टेट का टेक्निकल मेंबर बैठेगा. समझ में आ रहा है क्या इश्यूज हैं? तो सबसे पहले इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो सेंटर का अपॉइंटमेंट के लिए इन्होंने अलग से सिलेक्शन कमेटी बनाई है, स्टेट का अपॉइंटमेंट के लिए अलग से सिलेक्शन कमेटी बनाई है. और अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो कोई एक टेक्निकल मेंबर बैठेगा, तो वो सेंटर का बैठेगा या स्टेट का बैठेगा, तो एक साल सेंटर का बैठ जाएगा, दूसरे साल स्टेट का बैठेगा. ऐसा कुछ रोटेशन वो लोग करेंगे. अब मैं आपको सिलेक्शन कमेटी एक बार दिखलाता हूं, ये क्या है सिलेक्शन कमेटी. जो लिखा वाला है ना वो धुंधला धुंधला दिख रहा है. अच्छा ठीक है, मैं ना व्हाइट बोर्ड पे रखूंगा. पेन चेंज कर दीजिए सर. ठीक. अब देखिए, सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी ये ढूंढेगा भी और सेलेक्ट भी करेगा. अब देखिए कैसे करेगा ये. देखिए, टेक्निकल मेंबर स्टेट अगर आप देखेंगे तो इसका चेयरपर्सन होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट. फिर सीनियर मोस्ट जुडिशियल मेंबर इन दैट स्टेट, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. अब देखिए ये जो सिलेक्शन कमेटी है, ये वाले चेयरपर्सन, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सीनियर मोस्ट जुडिशियल मेंबर, ये टेक्निकल मेंबर भी सेलेक्ट करेंगे और जुडिशियल मेंबर दोनों सेलेक्ट करेंगे. याद रखिएगा. चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, वन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो ये सब मिलके करेंगे. तो इसमें दो जुडिशियल मेंबर है और मुझे लग रहा है 3 टेक्निकल मेंबर है. दे विल सेलेक्ट जजेस. तो सिलेक्शन कौन कौन जुडिशियल मेंबर हो सकता है, कौन टेक्निकल मेंबर हो सकता है, उसका भी क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है. लेकिन जब जुडिशियल मेंबर्स, अच्छा सॉरी मैं गलत बोल गया, ये सिर्फ टेक्निकल मेंबर स्टेट सेलेक्ट करेंगे,
ये जो जुडिशियल मेंबर सेंटर और स्टेट और टेक्निकल मेंबर सेंटर, ये इसके लिए अलग सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी बनी हुई है। तो एक बार फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, क्या क्या है। टेक्निकल मेंबर स्टेट सेलेक्ट करने के लिए ये कमिटी बनी है, और जुडिशियल मेंबर चाहे सेंटर का हो या स्टेट का हो या टेक्निकल मेंबर सेंटर का हो, तो उसके लिए ये कमिटी बनी है। मुझे एक बात बताइए, अगर जुडिशियल मेंबर स्टेट का सेलेक्ट करना है तो इसमें स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस और नो? जुडिशियल मेंबर यस, होना चाहिए। होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, अब देखिए कैसे। चेयरपर्सन कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम। तो टॉप मोस्ट पोजीशन जुडिशियल मेंबर जो हाईएस्ट पोजीशन है वो चेयरपर्सन है। फिर मेंबर सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, मेंबर चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू बी नॉमिनेटेड बाय द काउंसिल, मेंबर एज पर द फॉलोइंग फंक्शंस। अब यहां पर ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या हर एक स्टेट के होने चाहिए? मुझे तो यही लग रहा है। तो जिस स्टेट का अपॉइंटमेंट है वो स्टेट उस कमिटी में एक बार बैठ जाएगा वोटिंग के लिए। मेंबर एज पर द फॉलोइंग फंक्शन, इन केस अपॉइंटमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ ए ट्रिब्यूनल शैल बी आउटगोइंग प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल, वगैरह वगैरह कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो आप ये सब हमारे उतना काम का नहीं है, लेकिन कहानी ये है कि स्टेट वांटेड रिप्रेजेंटेशन व्हेन इन द सिलेक्शन ऑफ जुडिशियल मेंबर स्टेट हाउस। अब आइए हम लोग मिनट्स पढ़ते हैं। अब आपको मिनट्स में एक एक चीज समझ में आएगी। द मैंडेट ऑफ जीओएम, ये जीओएम कौन है? इनको सेटअप किया था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जिनके चेयरमैन थे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, और इनको एक रिपोर्ट भेजना था जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए। और इनका क्राइटेरिया क्या था इस जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का नया लॉ बनाने के लिए? वो क्राइटेरिया लिख रहे हैं, द मैंडेट ऑफ जीओएम वाज टू रिकमेंड नेसेसरी अमेंडमेंट्स टू जीएसटी लॉ टू एंश्योर दैट द लीगल प्रोविजंस मेंटेन द राइट फेडरल बैलेंस एंड वेर इन लाइन विद। जब फेडरल बैलेंस की बात कर रहे हैं तो जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों का रिप्रेजेंटेशन, and were in line with overall objective of uniform taxation as well as the principles outlined in various judgment of courts in relation to the constitution of tribunals. The honorable convener further explained that two members of the GOM had differed with the recommendation of GOM on the point of opting for a national tribunal with benches in states, but there was agreement amongst members on the remaining recommendations. अब देखिए, ये जो दो स्टेट्स हैं वो ये चाह रहे थे कि स्टेट बेंच बनना चाहिए, मतलब स्टेट ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। He further stated that keeping in view the spirit of cooperative federalism में सेंटर और स्टेट एक साथ मिलके कोई नया लॉ बना सकते हैं। The GOM recommended one nation, one tax and one tribunal. He also informed that the detailed discussions were held for determining the methodology for creation of benches, selection of technical/judicial members, keeping in view of the right of member states as well as the interests of the taxpayers. After careful considerations of all these aspects, the GOM recommended that there should be one tribunal constituted at national level with benches of that tribunal at state level having regard to both population and taxpayer of that state. अब मुझे एक बात बताइए, वाई पॉपुलेशन, मान लीजिए यूपी में 20 करोड़ की पॉपुलेशन है और हिमाचल में हो सकता है 1 करोड़ की पॉपुलेशन हो, सिक्किम में 1 करोड़ से कम की पॉपुलेशन हो सकता है, लाख में हो। तो पॉपुलेशन के बेसिस पे बेंचेस क्यों डिसाइड हो रहा है? अब यूपी में बोल रहे हैं 5 बेंच बनाएंगे अलग अलग जगह, कानपुर, लखनऊ वगैरह वगैरह, लेकिन सिक्किम जैसे स्टेट में गैंगटॉक में एक ही बन जाए वही बहुत है। तो वाई बेसिस, वाई द पॉपुलेशन शुड बी द बेसिस? कहिए। नंबर ऑफ केसेस सर, नंबर ऑफ केसेस। केसेस तो नहीं है, केसेस नहीं है। देखिए आप समझिए, जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। और याद कीजिए जब हम लोग आईजीएसटी का क्लासेस ले रहे तो हमने बताया था कि प्लेस ऑफ सप्लाई वहां होना चाहिए जहां का वो सिटीजन है, जिस स्टेट का वो सिटीजन है। अगर मैं हिमाचल का हूं और दिल्ली जाके परचेज करता हूं तो प्लेस ऑफ सप्लाई बताइए क्या होना चाहिए? भूल जाइए लॉ को एक बार।
मैं हिमाचल में हूं और दिल्ली जाके कोई ज्वेलरी या टीवी परचेज करता हूं, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होना चाहिए या हिमाचल होना चाहिए? हिमाचल होना चाहिए। हिमाचल होना चाहिए। और हिमाचल होने के लिए सप्लाई लॉ में क्या लिखना पड़ेगा कि सप्लायर शुड रिकॉर्ड द एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, तभी तो हिमाचल पहुंचेगा। जी सर। तो मैं जिस स्टेट का हूं, चाहे मैं इंडिया में कहीं भी खर्चा करूं, आप देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई के सारे प्रोविजंस में जगह जगह उन्होंने सेक्शन 12 में मैक्सिमम जगह लिख दिया क्या, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ द रिसिपिएंट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। व्हाई? बिकॉज वो जिस स्टेट का, उस स्टेट को रेवेन्यू तो तभी मिलेगा जब प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगा। Yes. In this regard, he also informed the council that GeM had also considered the issue of various state advance ruling. अब देखिए वन नेशन एक ट्रिब्यूनल होना क्यों जरूरी है? जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, हर एक स्टेट का अपना अपना अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, यस और नो? Yeah. उसमें जो बैठे हुए मेंबर्स हैं वो टेक्निकल मेंबर है या जुडिशियल मेंबर है? अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में जो बैठा हुआ है वो कौन है? टेक्निकल मेंबर है या जुडिशियल मेंबर है? अरे हाँ ना कुछ तो बोले। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में जो बैठे हुए जज जो डिसाइड कर रहे हैं मेंबर, वो जुडिशियल मेंबर है या आप गेस अच्छा कर पाएंगे, या टेक्निकल मेंबर है? टेक्निकल ना। बोथ सर। टेक्निकल मेंबर है। इसीलिए क्वेश्चन ऑफ लॉ में जब आप कभी कभी देखते हैं एडवांस रूलिंग का जजमेंट आपके यस यस दिमाग के बाहर से चला जाता है, कोई उसमें क्यों? क्योंकि उसमें अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तब वो कुछ भी जजमेंट आ सकता है। ठीक बात है। अब देखिए इन दिस रिगार्ड ही ऑल्सो इन्फॉर्म द काउंसिल दैट GeM had also considered the issue of various state advance ruling authorities giving varied decision on the same issue। आज आप समझिए इसमें एग्जांपल में डेमो कार पे आईटीसी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? डेमो कार पे आईटीसी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप अपना बताइए जजमेंट, बाकी एआर क्या दे रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं। मिलना चाहिए। मिलना मिलना चाहिए। चाहिए। कौन सा सेक्शन अप्लाई करके आप बता रहे हैं कि मिलना चाहिए? फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वो कौन सा सेक्शन? यस, फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सेक्शन 16 तो यही कहता है। यस यस सर। अब ब्लॉक क्रेडिट में जाएंगे तो ब्लॉक क्रेडिट में लिखा हुआ है कि मोटर कार पे हम क्रेडिट नहीं देंगे, ठीक बात है ना? तो डेमो कार इज ए मोटर कार, लेकिन इफ यू आर सेलिंग दैट मोटर कार फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तभी तब क्रेडिट मिल जाएगा। यस डेमो कार इज फॉर सेलिंग फर्दर। हेलो, नो नॉट फॉर सेलिंग। नॉट फॉर सेलिंग। अब यहीं पर तो डिस्प्यूट हो गया कि 17(5) लगेगा या नहीं लगेगा। तो कुछ एडवांस रूलिंग ने कहा लगेगा, कुछ मिलेगा, कुछ ने कहा नहीं मिलेगा। और हमारा यह मानना है कि अगर फ्री फ्लो ऑफ आईटीसी है तो मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? ठीक बात है ना? तो यहां पर इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन ऑफ लॉ है। तो कुछ स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड मध्य प्रदेश, अब देखिए टू एलैबोरेट द पॉइंट द ऑनरेबल कन्वीनर cited the example of issue involving whether ITC needs to be allowed on a demo car used by car dealers, and the states of Haryana and Madhya Pradesh, the respective advance ruling authorities had passed orders that ITC paid on demo cars is not eligible credit, but in the state of Karnataka and Maharashtra the AR had passed an order that ITC can be allowed for demo car. This demonstrates that there could be conflicting views on the same issue across states as no single judgment prevailed over the whole country। अब एआर का जजमेंट तो जिसने लिया उसी के ऊपर बाइंडिंग है, परसुएसिव वैल्यू भी नहीं है। To address this issue, the GeM had recommended that national tribunals should be created with benches at states so that there will be persuasive value of orders judgment passed by respective benches in other states। आप समझिए, महाराष्ट्र स्टेट बेंच अगर कोई ऑर्डर पास करता है तो क्या यूपी का स्टेट बेंच उस ऑर्डर को मानेगा या नहीं मानेगा? यस और नो? नो जरूरी नहीं है, बट इट विल हैव ए परसुएसिव वैल्यू, यानी कि उस जजमेंट में जो स्पीकिंग ऑर्डर दिया हुआ है उसको पढ़ेगा, अगर उसको लगेगा कि उसमें कुछ मटेरियल है जो इस फैक्ट के साथ मैच करता है तो अप्लाई करेगा।
तो इट विल हैव परसुएसिव वैल्यू अगर वन ट्रिब्यूनल हुआ। लेकिन अगर हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना स्टेट बेंच सेटअप कर ले तब परसुएसिव वैल्यू होगा नहीं। He submitted that this would be keeping in line with having uniformity and one nation, one tax and one tribunal as national tribunal would be able to give ruling on such aspects. ठीक बात है। Yes. The Honorable Convener of GEOM further submitted that in 2020, the Honorable Supreme Court on a petition made by Madras Bar Association had directed that such selection committee be chaired by Chief Justice of India or a judge of Supreme Court nominated by him with the president of the tribunal and two officers as members. तो आप देखिए ये सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी में जो जुडिशियल मेंबर का जो चेयरपर्सन है वो कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अभी दिख रहा है ना आपको लॉ? Yes. ये देखिए चेयरपर्सन चीफ जस्टिस। ये सब इसलिए पहले से बता दिया ताकि मिनट्स आपको समझ में आए। On the question of having a different SC/SC for the states, the Honorable Convener stated that on the question of selection of technical member at national or state level, even during the 47th GST Council meeting, it was submitted that since all members are equal in roles and responsibility, they should go through the same selection and appointment process. अब देखिए टेक्निकल मेंबर स्टेट के लिए अलग सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी है, लेकिन बाकी सबके लिए जुडिशियल मेंबर सेंटर स्टेट या टेक्निकल मेंबर सेंटर के लिए अलग है। देखिए he further submitted GEOM had proposed that SC/SC search and selection committee for selection of judicial member and technical member center of national tribunal could consist of Chief Justice of India or a judge of a Supreme Court nominated by him as chairperson of this. President of the tribunal, secretary वगैरह वगैरह है। The honorable convener of the GEOM further pointed out that GEOM had recommended that the chief secretary of state in which the bench is located should be made part of the SC/SC in case of member for selection of technical member state. ये टेक्निकल मेंबर स्टेट के लिए ये इन्होंने चीफ सेक्रेटरी ऑफ दैट स्टेट बना दिया। With respect to composition of benches, the GEOM had recommended that it should consist of one judicial member and one technical member. देख रहे हैं equal participant. Further, the technical member should be a technical member center or technical member state in a 50-50 ratio in every state. In case of smaller states where only one bench should be constituted, there should be provision for alternating the tenure between technical member center and technical member state for a specific time. The GEOM further suggested that single member bench should be empowered to hear cases with tax implication up to 50 lakh, where no question of law was involved. सिर्फ अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, एविडेंस के बेस पर, तो टेक्निकल मेंबर तो देख ही सकता है, और उसमें भी कैप कर दिया अप टू 50 लाख। तो 50 लाख से ऊपर का क्वेश्चन, 50 लाख से ऊपर है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तो एक जुडिशियल मेंबर होना जरूरी है। However, the power to raise the monetary limit was left to the decision of the council. The honorable convener stated that with respect to qualification of member, the GEOM suggested that the president be judge of the Supreme Court retired or chief justice of High Court. With respect to qualification of judicial member, the GEOM recommended that he should be a judge of the High Court. अब qualification देखिए कौन बन सकता है जुडिशियल मेंबर? तो जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रिटायर्ड। ये कितने साल में रिटायर होता है सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज? 62 ईयर्स। तो 62 साल में अगर रिटायर हो रहे हैं, तो 62 साल में रिटायर होने के बाद वो अब यहां पर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए अप्लाई करते हैं, तो बताइए जनरली गवर्नमेंट का रिटायरमेंट एज क्या है? 65 ईयर्स या 67 ईयर्स, करेक्ट है? तो उनको करीब करीब 4-5 साल का यहां पर मौका मिल जाता है काम करने का। और अगर कोई पहले रिटायरमेंट ले लेता है तो ऑब्वियसली और ज्यादा साल मिल जाएगा। विद रेस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन ऑफ जुडिशियल मेंबर, द GEOM रिकमेंड दैट ही शुड बी अ जज ऑफ द हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज विद एटलीस्ट 10 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो नेशनल ट्रिब्यूनल के लिए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, और विथ रेस्पेक्ट टू द क्वालिफिकेशन ऑफ जुडिशियल मेंबर, अच्छा प्रेसिडेंट के लिए ये प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन है, और जुडिशियल मेंबर का क्वालिफिकेशन के लिए हाई कोर्ट रिटायर्ड और डिस्ट्रिक्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट विद एटलीस्ट 10 ईयर्स एक्सपीरियंस।
विथ रेस्पेक्ट टू, अच्छा इसमें एक सवाल है, क्या लॉयर जिसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, क्या वो यहां पर जुडिशियल मेंबर के लिए अप्लाई कर सकता है? यस सर नो? अब देखिए, ये तो केस फाइल हुआ है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कि लॉयर क्यों नहीं अपॉइंट हो रहे, तो मुझे लग रहा है कि और एक बार अमेंडमेंट होगा और लॉयर को इसमें डालेंगे वो। With respect to qualification of technical member, center or GM recommended that he should be a member of the Group A service, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर से ऊपर, with 25 years of service, IRS and C&IT, or all India service with at least 3 years experience in GST or existing law and 25 years of service. आप समझिए, इसका मतलब ये कम से कम एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर के रैंक में होंगे। 25 साल का एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है जॉइंट कमिश्नर के ऊपर, वही टेक्निकल मेंबर बन सकता है। उससे कम असिस्टेंट कमिश्नर को बना नहीं सकता क्योंकि उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस। विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन ऑफ टेक्निकल मेंबर स्टेट, यहां भी स्टेट में भी 25 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस, लेकिन यहां पर ये 25 साल का एक्सपीरियंस अगर जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा तो वो घटाया जा सकता है, क्योंकि हर एक स्टेट के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। Regarding the retirement age of members, the GOM recommends that the retirement age of president should be 67 years and 65 years for members. This was keeping in view that the retirement age of High Court is 62 years. Therefore, GOM felt that if they applied for member judicial of tribunal after 62 years, they would get a tenure of 4 years after the selection process. The Honorable Convener further submitted that if High Court just so desired, he could take early retirement and apply for port, but in such case, they should not be given an extension for more than 2 years in the second tenure. यानी total 6 years का tenure हो जाएगा। Regarding the number of benches to be constituted, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। 10 करोड़ 15 करोड़ का पॉपुलेशन में 5 और उससे कम में है, तो मतलब 5 करोड़ से ऊपर का पॉपुलेशन है तो 5 बेंच। फिर the honorable convener informed that the few that did not have a, अब ग्रुप ए सर्विस का कुछ स्टेट्स के पास कोई वैसा रिकॉग्निशन नहीं है, तो अगेन काउंसिल रिकमेंड कर सकता है। अब स्टेट्स को कहा गया कि कमेंट दीजिए कि इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के रिपोर्ट पे। अब यूपी कह रहा है कि हमें स्टेट ट्रिब्यूनल बनाने का पावर दिया जाए, क्योंकि आर्टिकल 323B क्लॉज 4 में उनके पास पावर है। आर्टिकल 246 सब 2 में स्टेट गवर्नमेंट के पास SGST एक्ट बनाने का पावर है, इसीलिए उनके पास आर्टिकल 323B में उनके पास ट्रिब्यूनल बनाने का पावर है, इसलिए वो पावर हमारे पास होना चाहिए। ये यूपी कह रहा है। राजस्थान ने भी सेम बातें कह दी कि ये पावर हमारे पास होना चाहिए स्टेट ट्रिब्यूनल बनाने के लिए। फिर महाराष्ट्र ने ये कहा कि भैया बेंचेस को सेटअप करने के लिए कोई पॉपुलेशन का भी क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। किसी एक स्टेट ने कहा कितने रिटर्न्स जा रहे हैं उसके बेसिस पे होना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये सब बातें मानी नहीं गई। और अगर फिर इनको कहा कि अगर स्टेट ट्रिब्यूनल बनाने दिया जाएगा तो 5 लेवल ऑफ जस्टिस होगा, तो इसीलिए वो छोड़ दिया गया। फिर आगे आते हैं। She stated that the National Tribunal at Center could have regional benches, but over and above that, states should have their own tribunal. The disputes pertaining to place of supply, etc., can be referred to the National Tribunal. ये वेस्ट बंगाल फिर अगेन कह रहा है कि होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आर्टिकल 323B स्टेट shall have the power to set up tribunals over आर्टिकल 246A for constitution of tribunal. तो ये सब स्टेट्स, कम से कम 10 स्टेट्स हैं जो ये कह रहे थे कि हमें स्टेट ट्रिब्यूनल चाहिए। फिर ग्रुप ए सर्विसेज में कुछ कहा कि एक्सपीरियंस इतने हमें मिलेंगे नहीं, तो तमिलनाडु क्या कर रहा है? He elaborated that there are 31 commercial state laws and 31 commercial tax departments across various states. He further stated that the court orders should not dictate the administrative policy to the union government or to the GST council, as this would be undermining the powers of the executive. He further stated that GST Council should exercise authority under the Constitution, which was the prerogative of elected representatives. The court कह रहा है ट्रिब्यूनल ऐसे सेटअप होना चाहिए, वैसे सेटअप होना चाहिए, मानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज
वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और फिर उन्होंने एक बात और कही कि हर एक स्टेट को स्टेट ट्रिब्यूनल इसलिए सेटअप करना चाहिए क्योंकि हर एक स्टेट की अपनी स्पेसिफिक नीड्स है, इंडस्ट्री है, जो वो वहीं का टेक्निकल मेंबर ही समझ सकता है। He also emphasized that when persons who are not from that particular state are appointed as members of tribunal, then they would not be conversant with the trade practices and uses that are peculiar to that state. And in this regard, he cited the example of rub that was taken up for discussion in the last council meeting. He further stated that local context would be lost in case of national tribunals. अब देखिए, गोवा और सिक्किम दो स्टेट ऐसे हैं जहां पर कैसीनो है, बाकी स्टेट्स में नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर कैसीनो का कोई मामला है तो गोवा और सिक्किम के टेक्निकल मेंबर ही समझ सकते हैं, बाकी स्टेट ने कभी तो हैंडल ही नहीं किया, तो समझेंगे कैसे। फिर ये जो 25 साल का जो लिमिट है, 25 साल का एज, तो मणिपुर ने कहा कि हमारे यहाँ जो ग्रुप ए सर्विस में जो अप्लाई करते हैं, तो उनको कहा कि अप्लाई करने का जो एज है मैक्सिमम 38 ईयर्स तक है। 38 ईयर्स में आप 25 साल जोड़ देंगे तो उनका तो रिटायरमेंट का एज आ जाएगा, ठीक बात है। और रिजर्व कैटेगरी में और हायर है, तो इसीलिए 25 साल का एक्सपीरियंस मणिपुर जैसे स्टेट में घटा दिया जाए। He further stated that present judicial hierarchy is district court, high court and supreme court, lower court मतलब, and not having an appellate authority at state level and proceeding straight to national tribunal does not appear proper. He stated that there must be state tribunals and appeal against state tribunal in case of conflicting views should go to national tribunal. तो obviously ये हुआ नहीं है। अब आ गया ये, the Honorable Convener of GOM stated while making the recommendation, all the 6 members of the GOM had considered the fact that tax was collected at state level on consumption basis, and the biggest evaluation method for consumption is the population and not the number of taxpayers. Therefore, GOM had recommended that the number of state benches would be decided according to the population of the state. Regarding the selection of technical member state, it was accepted that in case of technical member state, the chief secretary of the state would be the member of the selection committee. He further stated that there was a conflict regarding whether it should be a state tribunal or national level tribunal having benches in every state. He clarified that if an appeal is decided at the joint commissioner level, then as per the recommendation of GOM, the appeal would go to national bench or bench at state level, and then it would go to High Court, then to Supreme Court for final judgment. And if a state tribunal was created, then there would be a 5-tier system, and therefore GOM had collectively recommended the creation of national tribunal and benches in order to have faster delivery of judgments. He further stated that on the eligibility criteria of having experience of 25 years for the technical member state, the council might take a decision regarding relaxation of age or required experience as recommended by the state of Manipur. Regarding the number of members in the bench, it was stated council can make a decision to keep at 1-1 or 2-2. 1-1 मतलब 1 technical member, 1 judicial member, 2 मतलब 2 judicial member, 2 technical member. But the GOM had recommended having judicial member and technical member in the ratio of 1-1 in every bench. After thorough discussion and the same was to be amended, then there could be litigation at Supreme Court, and therefore the ratio 1-1 had been recommended in view of the judgment of Honorable Court. He also stated that these recommendations were made keeping in view of one nation, one tax and one tribunal, and also to avoid situations where conflicting views were given by different fora as is seen in case of AR at present. The CGST Act provided for national tribunal with regional benches and state benches with area benches, but it envisages only one tribunal. तो जो originally भी था, एक ही tribunal का concept था. Regarding the request for reduction of 3 years tenures for ठीक है. The Honorable Chairperson stated that insistence of the states on the right to nominate a person familiar with the state's situation in the benches was a fair point. Further, he stated that in case of bigger states like UP with 5 benches, their proposal was that initially 3 benches would have technical member and 2 benches have technical member state, and during the second tenure, this arrangement would be reversed. So, alternative ढूंढ रहे हैं. Maharashtra had stated that they had 8 VAT benches and they could request for more benches, and if some state desired to collectively form one tribunal, the same could be recommended.
He further pointed out that, as suggested by Honorable Chairperson, a separate search cum selection committee could be made for selection of technical member state, जो हो भी चुका है. Clarified that state tribunal and national tribunal would function independently and that the appeal would lie to the High Court as power under Article 226 cannot be taken away as clarified by the Apex Court in case of L. Chandra Kumar. तो स्टेट ट्रिब्यूनल का केस हाई कोर्ट जाएगा, नेशनल ट्रिब्यूनल का केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा. As regards the state tribunal giving conflicting judgment, he opined that the same can happen in now proposed system also. लेकिन persuasive value रहेगा. One judicial and two technical members and stated that the same was deliberated by GEOM and rejected for the reason that this would not ensure judicial priority. He further stated in case of 4 members, there would be disagreements between the members which would cause delay in delivery of judgments. He added that in case of national principal bench with state benches, the principal bench would be able to exercise control over the state benches to ensure uniformity of decision, but the supervision by principal bench is not possible in the case of state tribunal. तो एक जो नेशनल ट्रिब्यूनल होगा वही सारे स्टेट ट्रिब्यूनल्स को भी कंट्रोल कर रहा होगा कि किसके पास केस जाएगा, किसके पास नहीं जाएगा, वगैरह वगैरह. और वो कुछ डायरेक्शन भी दे सकता है कि महाराष्ट्र का स्टेट ट्रिब्यूनल ने ये डिसाइड किया तो यूपी के बाकी स्टेट ट्रिब्यूनल्स भी इसी के बेसिस पे आपको डिसीजन देना है. दिस माइट बी पॉसिबल. GST Council that the 2+2 formulation be adopted for national level and state level benches with national bench being the principal bench. So 2+2 मतलब 2 judicial, 2 technical. He suggested that the selection committee for technical member center should also comprise state high court judges, president of the tribunal and the secretary of the center and chief secretary of the concerned state. तो ये भी हो ही चुका है, आप देखेंगे इसमें. तो कौन कौन है? स्टेट हाई कोर्ट जज, ना स्टेट हाई कोर्ट जज तो नहीं है इसमें. The Honorable Chairperson confirmed that transfer of technical member state would be done within that state only. After detailed discussion, the council decided that there should be one GST appellate tribunal with a principal bench and state benches. Each bench of the appellate tribunal would consist of 4 members. That is 2 judicial, 2 technical, 1 member from center, 1 from the state. But in all the cases where the ITC involved or fee, fine, penalty imposed does not exceed 50 lakh rupees, it would be heard by a single member. And in all other cases, it shall be heard by minimum 1 judicial member and 1 technical member. अब देखिए ये मैं आपको दिखलाता हूँ ये कैसे काम कर रहा है. देखिए हियरिंग कैसे होगी. प्रिंसिपल बेंच वेयर वन ऑफ द क्वेश्चन इन्वॉल्व इज प्लेस ऑफ सप्लाई, तो वो दिल्ली में पहुंच जाएगा. स्टेट बेंच अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है एंड टैक्स आईटीसी पेनल्टी फी अप टू 50,000 रुपीज है, 50 लाख नहीं, अप टू रुपीज 50,000 रुपीज है, तो सिंगल टेक्निकल मेंबर है. लेकिन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड टैक्स आईटीसी पेनल्टी एक्सीड्स 50,000 तो 1 जुडिशियल मेंबर 1 टेक्निकल मेंबर. क्वेश्चन ऑफ लॉ एनी अमाउंट इन्वॉल्व 1 जुडिशियल 1 टेक्निकल. तो किस बेंच में जाएगा वो ये प्रिंसिपल बेंच जो नेशनल ट्रिब्यूनल है वो डिसाइड करेगा. अच्छा, अब ये जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का डिस्कशन कंप्लीट हो गया. किसी को कुछ भी कहना है तो प्लीज अपना इनपुट दे सकते हैं. आप सवाल करेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा. प्लीज एनी क्वेश्चन. अनुराग गुप्ता जी फ्रॉम एडवोकेट फ्रॉम लखनऊ, वेलकम. प्रतीक, ऐसा कुछ जो नहीं समझ में आया हो मैं दोबारा बोलूं? नहीं सर, अभी तो जितना सुना उतना तो समझ आया सर, बाकी थोड़ा खुद से देखूंगा अभी. ओके ओके. कोई सवाल राजेश जी? संतोष पाटिल जी कोई सवाल? नहीं सर. जो नए मेंबर हैं सुधाकर उन्नी जी, मीनाक्षी सुंदरम, पाटिल प्रसाद, प्रसाद जी भी कोई भी सवाल करे. सवाल करेंगे तो मुझे भी इंसाइट मिलेगा. ओके चलिए.
जो नए मेंबर्स हैं, हम वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 की बुक्स भी हमारी जीएसटी का, तो taxbyKK.com में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं। अब कोई खास है नहीं, इसमें दिखलाता हूँ। ये हर एक मीटिंग में ये क्या करते हैं, जितने भी पिछले नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स एंड ऑर्डर इश्यूज हुए हैं, वो सारे का सारे अप्रूव कर देते हैं। तो फिर ये कोई नहीं कह सकता कि सर ये जो सर्कुलर आया है विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल आया है, दैट इज नॉट पॉसिबल। हर चीज वो रेटिफाई कर देंगे। अब इन्होंने रेटिफाई करने से पहले तमिलनाडु क्या कह रहा है, पर्टेनिंग टू द सेड एजेंडा स्टेट्स दैट प्रोसीडिंग फाइनलाइज अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर। अब मैं इसका हिस्ट्री बता देता हूं आपको। मुझे एक बात बताइए, आप मान लीजिए अपील में गए, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, आपका 100 करोड़ का मामला था और हाई कोर्ट ने इसको रिड्यूस करके 20 करोड़ कर दिया, चाहे पेनल्टी रिड्यूस कर दिया, लेट फीस रिड्यूस कर दिया, टैक्स रिड्यूस कर दिया, लेकिन कर दिया। अब हाई कोर्ट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? मैं एक चीज बता दूं, इससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं, समझिए इस चीज को। अगर आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में अपील फाइल करना चाहते हैं तो कितना % देना पड़ता है आपको? 10%। जी। ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करना चाहते हैं तो कितना देना पड़ता है? 20%। और 10% ऑलरेडी दिया हुआ है। जी। ट्रिब्यूनल में अगर आप केस हार जाते हैं, लूज, और हाई कोर्ट में चले जाते हैं, तो क्या जो बैलेंस 70% देना कंपलसरी है? जी जी। यस, ये हमने डिस्कस किया था, एक सेक्शन है मुझे याद नहीं है, लेकिन हमने डिस्कस किया था। ट्रिब्यूनल में केस हारने का मतलब कि खत्म। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब भी क्वेश्चन जाएगा, केस जाएगा, ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ ही जाएगा। यस और नो? हाँ सर। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि 16(4) अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्वैश्ड, तो आईटीसी की रिकवरी तो 100% यहां हो चुकी थी ट्रिब्यूनल में, जैसे केस हारे आप। जी सर। आपने ये 100 करोड़ रुपए दे ही चुके हैं आप। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्वैश, अब बताइए ये 100 करोड़ का रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो रिफंड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो देगा नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो ऑर्डर पास कर देगा, हेंस रिफंड शुड बी अलाउड। कौन देगा? एग्जीक्यूटिव ही देंगे ना, कमिश्नर आपका जुडिशनल ऑफिसर ही देगा ना। जी सर। समझ में आ रहा है आपको? अब आप समझिए, मान लीजिए हाई कोर्ट ने आपका टैक्स रिड्यूस कर दिया, 100 करोड़ की जगह 20 करोड़ कर दिया। तो अब सेक्शन 84 ये कहता है कि अगर कोर्ट अगर आपका टैक्स रिड्यूस करता है तो सेक्शन 84 में कि डीआरसी 25 है, वो कमिश्नर इंटीमेशन इशू कर देगा डीआरसी 25 में कि आपका इतना लायबिलिटी रिड्यूस किया जाता है। ठीक बात है। अब अगर लेकिन आपका ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जहां पर आप आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी कोड के अंतर्गत गए और यहां पर स्टैट्यूटरी ड्यूज रिड्यूस कर दिया गया, आपको जीएसटी देना था 100 करोड़, ये रिड्यूस कर देता है 20 करोड़ तक, क्या जीएसटी में रिड्यूस हो जाएगा एनसीएलटी के द्वारा? ये हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम, तो ट्रिब्यूनल है, पॉसिबल है। यस और नो? तो इन्होंने एक सर्कुलर निकाला और सर्कुलर में लिखा कि यस, तो ये सर्कुलर को ये वाला सर्कुलर, जहां पर तमिलनाडु गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं ये गलत है,
pertaining to the said agenda which states that proceeding finalized against the corporate debtor under Insolvency and Bankruptcy Code 2016, reducing the amount of statutory dues payable shall become final under Section 84 of CGST Act. Honorable member stated that the actual power to write off is only vested in the government and it is not vested in this code. Although it could be sent as recommendation to the government, only the government actually could write off its dues. अब देखिए जीएसटी पॉलिसी विंग क्या कहता है. Section 84 of the CGST Act provides that if any government dues are reduced in any proceedings, then the concerned commissioner shall give intimation of the reduced amount to the concerned person and to the appropriate authority with whom the recovery proceedings are pending. The view was taken that the proceedings which are conducted under IBC also relate to reducing the amount of liability and are covered under Section 84 of CGST Act. And thus such orders shall have the effect of reducing the government dues under this. So the law committee had taken the view that commissioner can issue intimation under DRC 25 under Rule 161 of CGST rules, reducing the amount of the liability, and thus such amount can be reduced from the liability register. तो ये कहानी है. तो अब ये सर्कुलर तो विड्रॉ नहीं हुआ है, तो ये अब चलेगा. और लेकिन ये सर्कुलर को लॉ कमिटी में भेज दिया गया है टू एग्जामिन इन डिटेल. अब आइए सेक्शन 23. आपको याद होगा एक अमेंडमेंट आई, देखिए सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 24. 22 क्या है कि अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर आपका ज्यादा टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, यस और नो? यस सर. 24 में क्या लिखा हुआ? आरसीएम वाले को रजिस्ट्रेशन करवाना है, इंटर स्टेट सप्लाई को रजिस्ट्रेशन करवाना है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचेंगे तो रजिस्ट्रेशन करवाना है, आईएसडी में रजिस्ट्रेशन करवाना वगैरह वगैरह. ये 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है रिस्पेक्टिव ऑफ योर थ्रेशोल्ड लिमिट. करेक्ट? आप 23 में ये लिखा हुआ है, 23 सबसेक्शन 1 है और 2 है कि अगर आप सिर्फ एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है. करेक्ट? आप अगर एग्रीकल्चरिस्ट है तो रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है. और अगर कोई नोटिफिकेशन आ गया है जैसे इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा होगा तभी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है. फिर इसी में नोटिफिकेशन आया 40 लाख रुपए का, अगर आप इंट्रास्टेट सप्लाई ओनली गुड्स का कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है. ठीक बात है? अब इन्होंने अब 23 या 24 में किसमें लिखा हुआ था? नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन. करेक्ट है? किसमें लिखा हुआ था? 23 में ही था. 23 में लिखा हुआ था नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन. ठीक है. अब 23 में अगर लिखा हुआ है कि अगर नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, तो अगर मैं सिर्फ एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा हूं और मान लीजिए एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है और इसने डायरेक्टर रखे हुए हैं जिस पे रिवर्स चार्ज है और ये फुल्ली एग्जाम सप्लाई करता है, तो बताइए रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 में करवाएगा? 22 एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल? नॉट एप्लीकेबल. नॉट एप्लीकेबल. 23 एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल? एप्लीकेबल क्योंकि वो सिर्फ एग्जाम सप्लाई कर रहा है और 23 कहता है रजिस्ट्रेशन मत करवाओ. लेकिन ये डायरेक्टर रखा हुआ है जिस पे आरसीएम है तो 24 कहता है रजिस्ट्रेशन करवाओ. बिल्कुल. तो 23 कह रहा है रजिस्ट्रेशन मत करवाओ, 24 कह रहा है रजिस्ट्रेशन करवाओ. तो इस एनोमली को इन्होंने करेक्ट किया और कुछ लॉ बनाया. जब लॉ बनाया तो 23 वाज ओवरराइडिंग सेक्शन 24. एकदम साफ साफ लिख दिया. जब ये लॉ बना तब फाइनेंस बिल में आया था तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है. क्यों? क्योंकि लेवाई का सेक्शन खत्म नहीं हो सकता. अगर आप इस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को कह देंगे कि एग्जाम सप्लाई को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, भले आपको आरसीएम लग रहा है, तो लेवाई का सेक्शन खत्म हो जा रहा है. लेवाई का सेक्शन कौन सा? आरसीएम सेक्शन 9 में है ना. तो ये इंटरप्रिटेशन हो नहीं सकता है. तो उन्होंने यही लिखा, रिकमेंडेड 48 जीएसटी काउंसिल में ये रिकमेंड किया गया टू गिव ओवरराइडिंग इफेक्ट टू सेक्शन 23 ओवर 24 एंड सबसेक्शन 1 और 22 retrospectively with effect from 1 July 2017 so as to provide exemption from mandatory registration for small trader for intrastate supply of goods through e-commerce operators. However, the said amendment has created anomaly that persons
who are required to pay duty under reverse charge mechanism on their inward supplies would not be required to get registered if they are otherwise not making any taxable supply themselves, which was not the intention behind the said amendment. और याद रखिए एकदम शुरू से हम लोग का यही इंटरप्रिटेशन रहा, हमने अपनी किताब में शुरू से यही लिखा है. To correct this anomaly, the law committee has recommended, after detailed discussion, that section 23 of CGST be amended progressively to give overriding effect only to subsection 2 of 23 and not subsection 23(1) over 24. आप याद कीजिएगा 23 का है ना कोई सबसेक्शन ये सब हटा दिया था, फिर उनको अमेंड करके 1 और 2 रखा हुआ है. अब आइए, ये तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में अगर रिटर्न फाइल कर देते हैं आप 30 दिन के अंदर, तो 30 दिन के और 60 डेज कर दिया, 60 डेज की जगह 90 डेज कर दिया, वो सब है. इस पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, बड़ा सिंपल सा है, कॉम्प्लेक्सिटीज कुछ नहीं है. फिर एमनेस्टी स्कीम के बारे में आया. ये एमनेस्टी स्कीम में ये आपको हिंट दे रहा है क्या कि जीएसटी अभी जो एमनेस्टी स्कीम आया किसका आया था? एनुअल रिटर्न का आया था, 9 का, 10 का और जीएसटी 4 का आया था, करेक्ट. लेकिन 1 और 3 का एमनेस्टी स्कीम आया नहीं. राजस्थान गवर्नमेंट ये कह रही है कि भैया 1 और 3 का भी एमनेस्टी स्कीम लेकर आइए, कि जीएसटी काउंसिल डिड नॉट एग्री कि 1 और 3 का बहुत सारा एमनेस्टी स्कीम आ चुका है. तो अब देखिए दोबारा आएगा. ये रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन भी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि रिवोकेशन के लिए अप्लाई टाइम बढ़ाने का, तो टाइम बढ़ चुका है. फिर 73 सबसेक्शन 10. अब ना यार दिस इज इंटरेस्टिंग. 73 सबसेक्शन 10 का एक बार लास्ट डेट बढ़ाया था, उसको 30 जून किया था नोटिस इशू करने का, फिर बढ़ा के इसको 30 सितंबर किया था, 30 जून किया था, उसके बाद 30 सितंबर कर दिया था, करेक्ट है ना? ये डिस्कस किया गया. अब देखिए, it was felt by the law committee that while there may be need to provide additional time to the officer to issue notices and pass orders for financial year 17-18, 18-19, 19-20, considering the delay in scrutiny, assessment or audit work due to COVID-19 restrictions. However, the same need to be made in a manner that there is no bunching of last date for these financial years as well as for the subsequent financial years. After detailed deliberations, law committee recommended that such time limits may be extended for another 3 months for each of financial year. This it was discussed in detail in officer meeting, where one view was that extension of financial year 17-18 had already been given, and further extension may create a perception that it was not a tax-friendly measure and against the interest of taxpayers. तो अब ये मान के चलिए 17-18 का तो और कोई टाइम लिमिट नहीं बढ़ने वाला, ना 18-19 का, ना 19-20 का, खत्म अब, क्योंकि ये लाइन लिखी हुई है. लास्ट टाइम लिख दी. ये एक सेक्शन ये मैं आपको फिर से बता रहा हूं. अब ये हिमाचल प्रदेश व्हीकल के लिए क्यों बोल रहा है? व्हीकल में तो एड्रेस वोड्रेस देना पड़ता है. वाई हिमाचल प्रदेश विल लूज बेनिफिट? हिमाचल के लोग किसी और स्टेट में जाके अगर व्हीकल खरीदते हैं तो हिमाचल कैसे रेवेन्यू लूज करेगा? व्हीकल खरीदने के लिए तो एड्रेस देना कंपलसरी है. हाँ, सप्लायर अगर एड्रेस ना लिखे तो दिक्कत है. इन्होंने एक नया सेक्शन लेके आए हैं 10CA. सेक्शन 10 में 10 सब सेक्शन 1 क्लॉज A, B, C, D, E था, लेकिन उन्होंने एक नया सेक्शन लेके आए, शायद इसी के लिए लेके आए होंगे. 10(1)(B), 10C, ये देखिए रिलेशन वाला, where the supply of goods is made to a person other than registered person, यानी B2C supply. The place of supply shall notwithstand anything contrary contained in A or C be the location as per the address of the said person recorded in the invoice issued in respect of the said supply, and the location of the supplier where the address of the said person is not recorded in the invoice. काम ही खत्म हो गया कि टर्मिनेट करो, ये करो, वो करो, उसका चक्कर ही खत्म कर दिया इन्होंने. इतना इंटरप्रिटेशन 10(1)(A) का हुआ है कि कहाँ टर्मिनेट होगा, तो वो सब खत्म है. अच्छा, एक बात बताइए, कोर्ट
अगर अपना प्रॉपर्टी किराए पे देता है तो आरसीएम है या फॉरवर्ड चार्ज है? बताइए, ये जानना बहुत जरूरी है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर आप कोई सर्विसेज लेते हैं तो फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, बताइए। देखिए, सीरियल नंबर 6, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिटेड लोकल अथॉरिटी, इन्होंने लिख दिया द प्रोविजंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन सो फार एज दे अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट शैल आल्सो अप्लाई टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। वाइड नोटिफिकेशन नंबर 2 2023 दिस 1 मार्च 2023 से एप्लीकेबल हो गया। 49th जीएसटी काउंसिल मीटिंग 18 फरवरी को हुआ था और इन्होंने लिखा ही फर्दर स्टेटेड दैट द अदर एजेंडा ऑन सर्विसेज was to examine whether the services supplied by the courts oblique tribunals, which are commercial in nature, like renting of space to telecom towers and renting of lawyers' chambers, etc., can be taxed under reverse charge mechanism. The Fitment Committee recommended that same dispensation with regard to payment of GST and RCM as applicable to central and state government might be extended to courts and tribunal also. ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। मुझे एक बात बताइए, कोर्ट अगर किसी लॉयर को चेंबर किराए पे देता है, रेंट लेते हैं कि नहीं लेते हैं ये लोग? तो रिवर्स चार्ज लगेगा। कैसे लगेगा रिवर्स चार्ज, आप बताएंगे? आप लॉयर पे भी रिवर्स चार्ज है, कोर्ट पे भी रिवर्स चार्ज है। लॉयर रिवर्स चार्ज देगा? जितेंद्र सोनी जी, कोई आइडिया? कैसे ये एग्जीक्यूट कैसे होगा? वो रजिस्टर ही नहीं रहेगा, जी, रजिस्टर ही नहीं रहेगा फायर को। देखिए, अगर फॉरवर्ड चार्ज में तो कोर्ट को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कोर्ट क्यों रजिस्ट्रेशन करवाएगा जीएसटी में? जी जी। लॉयर तो अब दोनों का जगह रिवर्स चार्ज है, कौन सा प्रिवेल करेगा? टैक्स तो लेगी गवर्नमेंट। तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ हो गया ना, जुडिशियल मेंबर ही डिसाइड कर पाएगा। तो मेरा मानना तो यही है कि कोर्ट तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेने वाला, लॉयर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा शायद। लेकिन आप चेक कर लीजिएगा, चेंबर देते तो रेंट देते या नहीं देते? देखिए, रेंटिंग और लॉयर्स चेंबर्स लिखा हुआ तो है, चलिए चेक कीजिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप नया इश्यू है क्या? एमआरपी बेस्ड टैक्सेशन पॉसिबल है? नहीं सर। नहीं पॉसिबल, जीएसटी में ये पॉसिबल ही नहीं है। आज टेबेको और ब्रिक्स में क्या हो रहा है? ये लोग क्लैंडस्टाइन रिमूवल कर रहे हैं और टैक्स का इवेजन कर रहे हैं। टर्नओवर 100 करोड़ है, दिखलाते हैं 20 करोड़। तो इन्होंने क्या किया, इस पर पूरा डिस्कशन हुआ कि कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन, जितनी मशीन है उसके बेसिस पर टैक्सेशन कर देते हैं। लेकिन दिस जीएसटी काउंसिल डिड नॉट एग्री एंड दे सेड दैट दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी टू टैक्स एनी आइटम ऑन प्रोडक्शन बेसिस, क्योंकि हम लोग का डेस्टिनेशन बेसिस है और प्रोडक्शन बेसिस पे करेंगे यानी कि ओरिजिन बेसिस पे करेंगे तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है। तो इन्होंने एक नया रास्ता निकाला। बोला, क्या रास्ता निकाला? आपको याद है एक ब्रिक्स का नोटिस आया था, अनिमेश ने शायद भेजा था या किसने भेजा था, जहां पर कोल के ऊपर जो सेस लगता है, तो सेस मान लो 400 पर टन लगता है, और वहां पर अगर आपका सेस का अगर मान लीजिए 400 रुपए का सेस नजर आ रहा है, तो वो कहता है 1 टन कोयला। फिर एक रिपोर्ट निकाला किसी का, प्राइवेट कंपनी का,
बोला 1 टन कोयला से इतने ब्रिक्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, और इस ब्रिक्स का अगर एमआरपी या वैल्यू हम लोग देखें ब्रिक्स का सेल का तो 5 रुपया है, तो आप 1000 × 5 कितना हो गया, 5000 रुपए का टर्नओवर दिखलाना चाहिए, आपने 1000 रुपए का टर्नओवर दिखलाया, बताएं क्यों? समझ में आया? इन्होंने टेबको के लिए क्या किया कि इन्होंने कहा भैया जितना मशीन, आपको याद होगा हमने एक सेशन लिया भी था, जितना मशीन है आपके पास, आपने खरीदा, उसमें कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी, उस पूरे मशीन का वो डिटेल मांग रहे हैं। तो देखिए, द मैंडेट ऑफ GM was to examine the possibility of levy of GST based on the capacity of manufacturing unit and special composition scheme in certain evasion prone sectors like pan masala, gutka, brick clean and sand mining, etc. With respect to current legal provisions, to examine whether any change is required in legal provision to allow such levy, to examine the impact of such levy on the destination nature of current GST design, and to examine any other administrative or systematic mechanism to block leakage in this sector, and to examine the impact of levy on reverse charge on mentha oil, and to examine if there could be other class of supply that could be subjected to reverse charge to augment revenue. Capacity-based levy in this sector is stated that GST is a destination-based tax on supply of goods and services and not on their production. He further asserted that the Constitution does not provide authority for capacity-based levy of GST. He also stated that capacity-based taxation is extremely complex and requires frequent changes in the rate structure, and emphasized that there are no further check and verification in supply chain which could lead to revenue leakages. It was also emphasized that capacity-based taxation suppresses the competition and goes against the small producers who are not capable of making huge investment in capital infrastructure. He then pointed out that such system has deep-rooted malice and may encourage officer-producer collusion at the level of jurisdictional officer. जैसे अभी अल्कोहल में क्या होता है कि वहां पर ऑफिसर बैठते हैं उस फैक्ट्री में, तो वो सिस्टम शुरू हो जाएगा, इसीलिए इसको डिस्करेज किया गया। He then referred to trace and track and trace method. ये क्या है trace and track method? ये होलोग्राम बेस्ड ट्रैकिंग। ये क्या करते हैं, जितना भी आप प्रोडक्शन करते हैं उस पर एक होलोग्राम लगा देते हो उस पर्टिकुलर आइटम का, और ये राजस्थान ने शुरू किया हुआ है। हर एक बोतल पे एक होलोग्राम है, जहां उस होलोग्राम को अगर आप स्कैन करेंगे, यानी कि बारकोड को स्कैन करेंगे, तो कौन प्रोड्यूसर है, डेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वगैरह वगैरह सब नजर आएगा। अब वो जब वो इनवॉइस बनाएगा तो वो होलोग्राम, वो इनवॉइस में लिखेगा कि ये होलोग्राम का इतना आइटम निकला है। HSN नहीं है, HSN तो होगा ही होगा, प्लस होलोग्राम। HSN से आप ट्रैक नहीं कर सकते, इन होलोग्राम से आप एग्जैक्ट वही आइटम ट्रैक कर सकते हैं। मान लीजिए इस पेंसिल का होलोग्राम है ये, और इनवॉइस पे ये होलोग्राम का मैंने डिटेल डाल दिया। अब ये यहाँ A से B गया, B से C गया, C से D गया। अब मैं D में जब होलोग्राम ट्रैक करूंगा तो उस मैन्युफैक्चरर के पास पहुंच जाऊंगा। उस मैन्युफैक्चरर के पास पहुंच जाऊंगा तो फिर ये मैन्युफैक्चरर से मैं पूछूंगा, भैया आपने ये इनवॉइस कब निकाला, कैसे निकाला, वगैरह वगैरह। तो इसी को हम लोग कहते हैं, ही देन रेफर टू ट्रैक एंड ट्रेस मेथड, जिसको होलोग्राम बेस्ड ट्रैकिंग कहते हैं। And internationally accepted practices to curb illicit trade in tobacco sector with the help of electronic means. He then suggested options for enhancing compliances such as registration of details of machines, and stated that manufacturer of tobacco products should take registration of each machine and should be required to disclose the make, year of production, number of tracks, and the capacity of machine. He also suggested for a special monthly return indicating machine-wise, shift-wise production and disclosing details like machine disposed of, machine added, and inputs procured and utilized in quantity. मैं आपको क्या करता हूं वो दिखला देता हूं अपने किताब में। ये नोटिफिकेशन आया, देखिए 30/2023, सेंट्रल टैक्स डेटेड 31 जुलाई 2023, इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2024। जनवरी 2024 तो आने वाला है, जहां पर डिटेल्स ऑफ पैकिंग मशीन, SRM फॉर्म 30 दिन। तो ये आप नोटिफिकेशन निकालेंगे, सारा कुछ, कितना मशीन खरीदा, कितना डिश,
और कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये सब आपको देना पड़ेगा। इनके लिए लेके आए इन पान मसाला, अनमैन्युफैक्चर्ड टेबेको, अदर समय फिल्टर, खैनी वगैरह वगैरह, इन सब प्रोडक्ट्स के लिए लेवल लेके आए सारा। फिर ये कह रहे थे लेबर कितना पॉइंट है वो भी डाल दीजिए आप, तो खैर वो तो नहीं हुआ। ये हर कोई चाह रहा है, ये तो ये अब डिसाइड हुआ 2028 तक ये इंप्लीमेंट करेंगे, ये कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, हर प्रोडक्ट्स के लिए नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए। ये देखिए 2028 तक, बाकी पढ़ लीजिएगा। गोल्ड एंड अदर प्रेशियस स्टोन्स अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ कैसे ईवी बिल जनरेट होगा। सेस एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, तो सेस 2026 तक एक्सटेंड हो गया, इसके बाद गवर्नमेंट सेस को एक्सटेंड नहीं करना चाह रही है। तो उम्मीद करता हूं 2026 के बाद क्या होगा, गाड़ी के दाम सस्ते हो जाएंगे जिसमें जिसमें सेस लगता है। यस और नो? जी जी। नहीं होंगे। वो अभी 14% किया हुआ है ना, वो सीधे मैक्सिमम 40% तक जा सकता है। तो गाड़ियों पे रेट ही बढ़ा देंगे, जैसे ही सेस 2026 खत्म होगा, गाड़ियों पे जो 14 है 20 कर देंगे। ओके। चलिए, तो वी कंप्लीटेड दिस 49th जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स डिस्कशन। कल हम लोग 50th के लिए मिलेंगे, लेकिन आप लोग अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। Regarding the selection of member and other things are all very correct. ओके ओके। Even earlier also, once we Madras High Court filed a writ petition, यस income tax tribunal, they want to appoint a chairman as commissioner retired. Oh, Challenge judges, when judges are sitting, the chief commissioner cannot be the chairman of the appellate tribunal. yes, And correct. the Supreme Court has struck down the act. Thereafter, they didn't come out with that income tax appellate tribunal at all. Okay. That is the ultimate forum to Okay. decide a central income tax appellate tribunal. They try to constitute. Okay. Based on the chief will be the chief, the chief judge will be the administrative person. Supreme Court struck down saying that the Supreme Court judge and High Court judge cannot work under the administrative. Administrative, correct. Absolutely correct. Your line of the reasoning also on the same platform. Yes, 100% it is correct. correct. Now these kind of viewpoint we need. एक नया कुछ सीखने को मिला ना हम लोग मीनाक्षी जी से। प्रसाद जी कुछ कहना चाहेंगे आप? नो सर। चलिए, एनीवन एल्स, कोई और कुछ कहेगा? सर अभी जो अपन देख रहे थे, ड्यू डेट और एक्सटेंड नहीं कर रहे थे 73 के नोटिस की। और एक्सटेंड करना चाह रहे थे? हाथ की नहीं इन्होंने अल्टीमेटली, तो उसके ऊपर भी ऑलरेडी केस फाइल हो चुका है। जो अभी 30 जो दिसंबर वाली ड्यू डेट है ना 17-18 की, तो उसके ऊपर भी केस फाइल कर दिया। हाँ, वो चैलेंज कर रहे होंगे 168A। हाँ 168A। ठीक है। जब मैंने कैलकुलेट किया वो केस टिकेगा नहीं, आपको बताता हूं क्यों। जो एक्सटेंशन है 168 का ए का, जो ये 168A लेके आए, मतलब जो एक्सटेंड किया उन्होंने 168A के से पावर लिया। 168A में एक्सटेंड तभी हो सकता है जब फोर्स मेजर हो। फोर्स मेजर का मतलब जब कोई चीज ऐसी हो जो इम्पॉसिबल हो जाए, जैसे कोविड, उसमें काम करना इम्पॉसिबल था। तो कोविड में मानता हूं 2 साल के लिए आया। अगर 3, 4 और 5 फरवरी या 5, 6, 7 फरवरी 2020 लास्ट डेट था, 20 लास्ट डेट था एनुअल रिटर्न का 2017-18 का, तो इसमें मैं 3 साल जोड़ूंगा तो 3, 4 और 5 फरवरी 2023 आएगा। 2 साल कोविड का जोड़ूंगा तो फरवरी 2025 आएगा। तो इन्होंने एक्सटेंड तो 30 सितंबर 2023 तक ही किया है।
तो मैंने ये कैलकुलेट किया था, मुझे नहीं लगता कि ये कोर्ट मानेगा इस बात को। चलिए बाकी लोगों का क्या ओपिनियन देख लें। और इनफैक्ट रिफंड का एक्सटेंशन ऐसे ही किया है इन्होंने, हमने कैलकुलेशन भी किया है इसका। सर अपना जो भी हम लोग ये डिस्कशन करते हैं, ये सीधे सीधे अपने लिटिगेशन में ही बस काम आता है। यस, और जो मेन फोकस उसी समय होता है कि जब हम कोई अपील फाइल करते हैं और करते हैं, तभी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। करेक्ट करेक्ट। और ये अपने आप में यूनिक होता है। हाँ, और हमें रीजनिंग भी पता लगती है ना। हाँ, रीजनिंग भी पता है। अभी जो प्रोडक्शन बेस की जो बात हो रही थी, वो हाँ सिर्फ टोबैको पे वो लाए। और हाँ। अभी वो अप्लीकेबल हुआ नहीं, हम्म। नोटिफाइड नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कैपेसिटी बेस सिर्फ इसलिए दिया कि सिर्फ यह मालूम करने के लिए कि कितना प्रोडक्शन इनका होता है। क्या उनके बेसिस पे वो 73 74 इशू कर सकता है? ये एक सोचने वाली बात होगी। हाँ, वो होगी, क्योंकि अब मशीनें कोई जरूरी थोड़ी कि परमानेंट चले। यस। जरूरी नहीं है, कभी कच्चा माल नहीं रहा तो नहीं चलेगी, या कोई इलेक्ट्रिसिटी डाउन हो गई तो नहीं नहीं चलेगी। चलेगी। हाँ, ऐसे बहुत सारे, कभी लेबर नहीं आए तो नहीं चलेगी, कभी हो सकता 10 मशीनों में से 2 ही चली। तो ये सब तो समस्याएं हैं। लेकिन वो बार बार कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हो, वो पोर्टल पे एक फॉर्म देंगे, उसी में आप अपडेट करते रहो। ये संभव नहीं है किसी भी व्यापारी वर्ग के लिए कि वो दिन भर पोर्टल बैठ के ये सब काम करे और प्रोडक्शन ना करे। इलेक्ट्रिसिटी का डिटेल तो मांग ही लिया उन्होंने इसमें। हाँ, तो ये समस्या तो है ही है उसकी। ट्रिब्यूनल सेटअप होगा जीएसटी का, तब असली खेल होगा। नहीं, ट्रिब्यूनल सेटअप होगा तो एसएससी को बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि फर्स्ट अपील तक तो मुझको लगता है कि वो जो फर्स्ट अपील वाले जो अधिकारी हैं, वो खुद ही अभी जीएसटी को नहीं समझ रहे। हाँ हाँ हाँ, ये एक्सपीरियंस तो सबको है ही। चलिए फिर कल मिलते हैं। ठीक है सर, वो 170 मैंने भेजा था। हाँ, वो अब वेडनेसडे या फिर किसी और दिन डिस्कस करेंगे। सर आपको वो मेल कर दिया मैंने। हाँ, लेकिन वो फाइल नहीं है। देखिए, मैं आपको सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक हमने एक सेंटेंसेस बनाए थे जहां पर अलग अलग जजमेंट्स के थे, तो वो फाइल मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी। जी, मैंने बाद में स्क्रीनशॉट भेजा सर आपको। स्क्रीनशॉट नहीं, वो पूरा फाइल चाहिए, उसमें 45 ही लाइन है। हाँ, 45 ही लाइन है मेरे पास तो। नहीं नहीं, मैंने 150 लाइन लिखी थी उसमें। हाँ, मैं ढूंढ लेता हूँ। और मैं आप सबको बताता हूँ, बताता हूँ आपको, जो आप लोग को याद होगा हमने आपके साथ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये देख रहे हैं, इट वॉज कंटेंडेड दैट हेल्ड ऑब्जर्व बाय वर्च्यू ऑफ एंड दिस अल्टरनेटिव हैव टू मस्ट, ऐसे करके मैंने 150 लाइन लिखी थी। ये तो बहुत कम है। ओके 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 ओके, मैं वो भी मिलता है कि मैंने ये पूरा टेक्स्ट आप लोग के साथ शेयर किया था। तो क्योंकि जब हम अपील ड्राफ्ट कर रहे होते हैं तो ये कभी कभी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ना या कैसे स्टार्ट करना, इसके लिए हमने ये लिखा था दैट द इम्पील नोटिस इज इनवैलिड, वॉइड एंड बैड इन लॉ। तो व्हाई इट इज इनवैलिड? बिकॉज ऑफ टाइम बार्ड। व्हाई इट इज बैड? बिकॉज ऑफ टाइम बार्ड। और बैड इन लॉ बिकॉज द ऑफिसर हैज नॉट फॉलोड सर्टेन प्रोसीजर, देयरफॉर बैड इन लॉ। तो ये सब वर्ड्स चाहिए था। तो ये मैंने आपके साथ पूरा शेयर भी किया था। ये पता नहीं कहाँ, मेरे पास लैपटॉप चेंज हुआ तो मिल ही नहीं रहा मेरे को। चलिए फिर कल मिलते हैं, है ना? Okay.